أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر، اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں، ان سب کی بارگاہ میں بھی ہمارا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تأثیرات قرآن کو حقیقت قرآن کے نورانیت کے ساتھ اپنی زندگی میں نجات حاصل کرنے والے ہوں، اپنی زندگی کو متاخت دینے والے ہوں، جو دنیا و آخرت میں آبرو مند رکھتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 193، 194، 195 جو ہے اس کی ہم نے یسٹرڈے کے پروگرام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ خوبصورتیاں قرآن کی، نور قرآن کا، کلام اللہ عز و جل کی حقانیت، جامعیت اور چیلنجنگ ہونا کس طرح سے ہے، تو اس میں پہلے سٹیپ میں جو نزول تدریجی ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے رسالت انبیاء علیہ السلام کے بعد احکامات الہی کی کنٹینویشن امامت و ولایت کے ذریعے ہماری روح کو معطر و نورانی رکھنے کے لیے ائمہ علیہ السلام کی وہ ہدایت اور گائیڈنس جو ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن، وارث قرآن اور علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے وارث قرآن کے ساتھ جڑنا، اور دونوں کے ساتھ ایک محبت اور جو ہے اس کا ہونا انسان کے وجود، روح، ایمان اور عقیدے میں ضروری ہے۔ تو قرآن اپنے وجود میں، اپنے لفظوں میں، اپنے میتھمیٹیکل سسٹم کے ذریعے بھی چیلنجنگ ہے، جو علوم اپنے اندر سمیٹتا ہے اس میں بھی چیلنج ہے، وہ تمام زمانوں کے گزرے ہوئے واقعات جو سمیٹ کر ہمارے لیے بتاتا ہے وہ اس میں بھی چیلنج ہے۔ اور پھر اگر ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو اپنی زبان کے لحاظ سے بھی چیلنجنگ ہے، اسی لیے خود قرآن میں بلسان عربی مبین کہہ کر ایک طرف امام مبین کی بات کر رہا ہے قرآن، تو بلسان عربی مبین کہ قرآن خدا عز و جل کا اتارا ہوا، جس کو امانتدار فرشتہ لے کر آیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لوگوں کو نصیحت کے لیے جو ہے وہ اتارا ہے، تو یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو اس کو سنے، بلسان عربی مبین۔ اور اس کا القاء بھی جو ہے فصیح عربی زبان میں ہے، اس کا عربی زبان میں ہونا معجزہ، یہ جوامع الکلم ہے، تبیان لکل شیء ہے، رب العالمین کی زبان ہے، تنزیل یافتہ ہے، افضل و اشرف ہے، تمام زبانوں پر بھاری ہے، تمام زبانوں میں مکمل، اچم، اعلیٰ، افضل ہے۔ وہ کوئی بھی زبانیں ہوں، وہ مغربی ہو، عربی ہو، مصری ہو، عربی عراقی ہو، عربی شامی ہو، کوئی جزائر کی عربی ہو، خلیجی ہو، حجازی ہو، جو ہے وہ یمنی ہو، نجدی ہو، جتنی بھی
ज़ुबान हाई मुख्तलिफ हैं, उसमें क़ुरान महमल कलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल, जो कि हज़रत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का कलाम और वजूद, ज़ात अक़दस इलाही, मुखातबीन वही, अम्बिया, इबादुल्लाह, यानी जितने भी लोग हैं ये ज़ुबान सबको मुखातिब करती है। इन्नल वहय यंज़िलु मिन इंदिल्लाह अज़्ज़ा व जल बिल अरबिया तअल्लमुल अरबिया फ़इन्नहा कलामुल्लज़ी युकल्लिमु बिही ख़ल्क़हू। इसी वजह से अरबी ज़ुबान को बाकी ज़ुबानों पर जो है वो एक फजीलत हासिल है। कहते हैं लिसानुल अरबिया अल्लती फ़ज़्ज़लतहा अला साइरिल लुगात, यानी कुरान हकीम की ज़ुबान को, इस अरबी ज़ुबान को तमाम ज़ुबानों पर अफजलियत हासिल है। और इस लिहाज से ज़ाहरी तौर पर भी इसका हुस्न, इसका बयान चैलेंजिंग है। और न सिर्फ ये इंसानों के दिलों में एक ज़बरदस्त किस्म की तासीर छोड़ जाता है, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर हम तारीख़ के वाक़यात को देखें तो ये कुरान ही है जिसकी तासीर में बहुत सारे लोग ज़ेर तासीर कलामुल्लाह अज़्ज़ा व जल आने के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। चाहे वो मक्का से हिजरत कर जाने वाले हबश की तरफ मुसलमानों का ग्रोह हो, या जनाब जाफ़र तैयार का सूरह मरियम की तिलावत करना हो हबशी के उस हबशा के उस बादशाह के सामने, या फिर उसके अलावा कुरान की आज के जो मोजज़ात और कलाम की तासीर के जो मोजज़ात हैं कि इंसान क्या परिंदे हर कोई उसकी तासीर से जो है उसमें जाए बगैर नहीं रहता। एक बड़ा ही मिस्र के मुमताज़ मुफस्सिर हैं सैयद कुतुब, जो तफसीर कुरान लिखते हैं, उनका अपना ज़ाती ज़िंदगी का एक वाक़या कि एक दफ़ा हम 6 मुसलमान जो है वो बहर ओक़यानूस में एक समंदरी सफ़र में थे और जहाज़ के अंदर थे, और हम सबको न्यूयॉर्क जाना था और बाय शिप हम लोग जा रहे थे। जहाज़ में टोटल तकरीबन 120 के करीब अफराद जो थे वो सवार थे, और हम सिर्फ 6 लोग मुसलमान थे और उसमें और कोई मुसलमान नहीं था। तो उस सफ़र करते हुए जुमे का दिन था, हमने सोचा कि नमाज जुमा है और कुछ नहीं तो बीच समंदर के नमाज जुमा ही अदा कर ली जाए। इस मजहबी फरीज़े को अदा करने के लिए उनके साथ एक उन्हीं के ग्रुप में एक क्रिश्चियन मसीही भी मतलब था, जो कि अपने क्रिश्चियनिटी की तबलीग कर रहा था और सारा कुछ। और हमारा भी दिल कर रहा था कि जब ये सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी के लिए एजुकेट कर रहा है तो हमारा भी दिल करता हम भी कुछ इस्लामी शायर को जो है उसका मुजाहरा करें। बहरहाल हमने मौका पाया बीच उसमें जाकर के, जब जहाज़ समंदर में जा रहा था तो हमने एक जगह पर मिडल में आकर के मैंने जो सैयद कुतुब थे मुफस्सिर, इन्होंने जुमे का खुतबा पढ़ा और जुमे का खुतबा पढ़ने के बाद नमाज जुमा की इमामत की, और ये 5 लोग जो मामूम थे जिन्होंने इनकी इक्तदा की, ये नमाज जुमा में मसरूफ़ हो गए। पूरे जहाज़ के बाकी लोग जो थे इनको देखने में महव हो गए। नमाज ख़त्म होने के बाद लोग जो थे आहिस्ता आहिस्ता इनके पास तशरीफ़ लाए और इस मजहबी फरीज़े के बारे में, इस इस्लामी शार के बारे में इनसे गुफ्तगू करना शुरू हुए। और बहुत सारे लोग जो थे इनको मुबारकबाद देना शुरू हुए कि उन्होंने कितना खूबसूरत, यानी जो क़िराअत उन्होंने की या जो वो अमल अंजाम दे रहे थे उसकी इतनी पॉजिटिव अफेक्शन जो थी उस वक्त लोगों में देखने नज़र आई कि जो लोग बहुत सारे आ रहे थे उनमें से एक खातून जो बाद में पता चला कि मतलब यूगोस्लाविया की थी और अपने मुल्क से किसी वजह से मुश्किल हालात की वजह से वहाँ से फ़रार होकर जो है वो दूसरी जगह मुंतकिल हो रही थी। इन्होंने गैर मामूली तौर पर कुरान उस नमाज का और जुमे के खुतबे का असर ले लिया। उनका जिस्म कांपता जा रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। अब
वो इतनी ज़्यादा तासीरें हरूफ कुरान के अंदर चली गई कि अपने आप पर काबू नहीं था, और बस अपनी जो है ना बकौल उनके कि वो इंग्लिश में कुछ ना कुछ जो था वो अपने मुंह में बोल रही थी। और उस दौरान वो उनसे ये इंग्लिश में ये उनसे पूछ रही थी कि व्हेन यू वर प्रेइंग इट वाज ब्रिलियंट एक्सीलेंट बट सम वर्ड्स वर वेरी इफेक्टिव। और बाद में उन्होंने देखा कि वो जो बहुत इफेक्टिव वर्ड थे, उन्होंने देखा, नोट किया कि जहाँ पर आयात कुरान खुतबे के अंदर इस्तेमाल हुई थी, उन आयात कुरान ने उसकी रूह और कल्ब को जो है वो तासीर के अंदर ले लिया था। बस ये मोजज़ा था उस अरबी ज़ुबान का, उस कलामुल्लाह अज़्ज़ा वजल का, कि उसने कहा कि ये गैर मामूली लफ्ज़ हैं, ये किसी इंसान के जुमले नहीं हैं, ये जुमले जो हैं ये रूहुल कुद्स के हैं। और फिर जब उन्होंने अपने आप को पूरा सोचा देखा तो ये कुरान करीम की वो आयात थी जिसमें वो औरत कुरान को नहीं जानती थी, लेकिन हुरूफ कुरान के तक़द्दुस और तासीर के अंदर वो उन जुमलों को रूहुल कुद्स के जुमले करार दे करके जो है वो उसकी तासीर में चली गई। और फिर बाद में ये भी लिखा कि इतना ज़्यादा उन जुमलों का मतलब तासीर उसके ऊपर हुई, उसका वजूद, उसका जहन, उसकी सोच बदली। और फिर उन्होंने तकाज़ा किया उस मुफस्सिर कुरान से कि वो कुरान के और जो है तिलावत उनके सामने करें। और इस तरह लहन कुरान से, हुरूफ कुरान से, यानी अरबी मुबीन कुरान का ज़ाहरी हुस्न भी इंसान को तासीर के बगैर नहीं छोड़ता। कुरान की ज़ाहरी जो लफ़ाज़ी है वो भी इंसान को हुस्न के बगैर, हाँ, और अगर फिर इंसान आशिक हो, मतलब साथ हकीकत कुरान का भी, तो फिर कुरान अपने चाहने वाले को रास्ता भी दिखाता है। कुरान अपने चाहने वाले को जो है उसके बातिन के अंदर जो नूर और नूरानियत है उसकी तरफ भी लेकर जाता है। अब मिलकर दुआ मांगते हैं, परवरदिगारा ये रमज़ानुल करीम की जो हम बहुत ही करीब हैं अब उन रातों के, हम अपने दिलों को, अपनी रूहों को कुरान की नूरानियत में, अगर कोई गैर मुस्लिम होकर कुरान को ना जानते हुए, ना समझते हुए, ना ईमान लाने के हैसियत से भी उसका असर लिए बगैर नहीं रहता, तो हम जो कुरान, अहले कुरान है, कुरान से मोहब्बत का, कुरान पर ईमान का, अल्लाह के कलाम का, उसको अपनी किताब हक़ समझते हैं, किताब हिदायत समझते हैं, हादी बरहक़ समझते हैं, इमाम समझते हैं, इसका जब हम वादा करते हैं और हमारे पास इसका एक प्रूफ है और हम उस ईमान और अक़ीदे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं कि कुरान हमारी ज़िंदगियों के लिए बेहतरीन किताब है, हुदन लिल मुत्तक़ीन, तो इस जो है व इन कुंतुम रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। ये वो चैलेंज है ज़ाहरी तौर पर भी, जो मैं समझती हूँ खुशनसीब हैं वो जो कुरान की तासीरात के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। एक नौजवान मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आकर अपने गुनाह का एतराफ़ किया, कहने लगा मैंने चोरी की है, या अली मेरा हाथ काट दीजिए। मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के जहन में, दिल में उसके लिए रहम आया कि एक शख्स अपने गुनाह को एडमिट कर चुका है, मतलब मान चुका है और अपने लिए अपने आप को सज़ा के लिए भी आमादा किए बैठा है और चाहता है कि उसका हाथ काट दिया जाए। खुद से तो मौला के दिल में रहम था, लेकिन चाहते थे कि उसको इस तौबा के बाद, गुनाह को मान जाने के बाद उसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन चाहते थे कुछ ऐसा हो कि जो राह बन जाए, जो रास्ता बन जाए इसके गुनाह करने के बाद तौबा के कबूल होने और इस सज़ा से बच जाने का। थोड़ी देर गौर करने के बाद, खामोशी के बाद, मौला अलैहिस्सलाम ने उस जवान से सवाल किया, ये जवान तुम कुरान जानते हो, कुरान पढ़ना अच्छा है? उस जवान ने कहा जी या अली मौला,
मैं सूरह बकरा को पढ़ना जानता हूँ, सूरह बकरा को पढ़ता हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया कि तुम सूरह बकरा, कुरान के उस सूरा को अपने दिल में रखते हो, दुबाम पर रखते हो और अल्लाह की बारगाह में ताइब हो। आज सूरह बकरा की उस मेमोराइजेशन या पढ़ने या तिलावत करने के अवज़ में उसकी बरकत की वजह से तुम्हारे हाथ को नहीं काटता। यानी कुरान का पढ़ना, कुरान का मेमोराइज करना उस जवान के लिए उस गुनाह से बचने का और उससे ताइब होने का, हाथ कटने का, हाथ ना कटने का ज़रिया बन गया। तो कुरान न सिर्फ ज़ाहरी तौर पर, रूहानी तौर पर भी हमें हमारी ज़िंदगी में निजात की तरफ लेकर जाता है। आइए आखिरी रातों की तरफ सफ़र करते हुए रूहानी तौर पर, मानवी तौर पर अपने आप को तैयार करें। कुरान से अपने आप को नूरानी करते हुए अपनी ज़िंदगी के पूरे साल के बरनामे को दस्ते मासूम से अच्छे तरीके से लिखवाने के लिए कुरान की तिलावत उनको हदिया करें। बेशक अगर हम एक सूरा ही हदिया करेंगे तो एहसान करने वाले इस दुआ के साथ या इस जुमले के साथ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक कनीज़ ने आपको फूल का तोहफ़ा दिया था तो बदले में आपने आज़ाद कर दिया। तो किसी ने कहा मौला एक फूल तोहफ़ा के बदले में आपने उसे आज़ाद कर दिया, इतनी बड़ी आज़ादी, इतना बड़ा तोहफ़ा। तो मौला ने फरमाया कि उसने तोहफ़ा दिया है और तोहफ़ा मुझे दिया है, बदले में मैं कुछ ऐसा दूँ कि वो खुशहाल हो जाए। तो जो एक फूल के बदले में एक ज़िंदगी की आज़ादी का तोहफ़ा दे देते हैं इमाम, आइए अपने वक्त के इमाम की बारगाह में उस कुरान को इस तरह हदिया करें कि हम दुनिया और आखिरत में उनकी मारिफत और उनके ज़हूर और जब वो तशरीफ़ लाएँ तो हमारी आँखें उनके दीदार से ठंडी हों। क्यों ना ये ज़रिया कुरान की तिलावत को हदिया करने के बाद उनसे हासिल कर सकें। इस दुआ के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।